am Barkha, your faculty and mentor at iConta, and we are back with our legal series of the passages that we have been solving, and we will continuously solve it for the next 25 days. Before that, I just want to brief you that what iConta is providing you for all your CLAT preparation. iConta always gives you the daily highlighted newspapers, the newspaper analysis videos, the daily editorials, and everything. Apart from that, I just want to give you a brief introduction about the Fast Track batch that has been launched by us, in which the students who have not started preparing for their CLAT exam and they want to prepare for their CLAT for the next 150 days, we have launched this batch specially for them. The classes will be from Monday to Saturday, live on Zoom. The classes are beginning from mid of July. We give them daily highlighted newspapers, newspaper analysis, mini mock series, etc. We also give them mocks and assignments. The speciality of this batch or our classes that I say is that if we have a 2-hour class, then that 2-hour class is divided into 2 sections, 1.5 hours for concepts and rest half an hour for applicability. That means that the concept learned in this 1.5 hours is make you sure that you also learn to apply that concept in that particular CLAT-oriented passage. And the fees for this fast track batch is 29,999, but we have offered special discounts for the students who have very good percentages in class 10th and 12th. And if you wish to enroll for this batch, then just please contact us through our websites, and all the details of this batch have already been discussed in the previous videos and are also available on our website. So now, to proceed further with our legal passage, the passage that I have chosen today is from Indian Contract Act, and it is related to acceptance, and the passage is as that the Indian Contract Act 1872 defines acceptance in section 2B. First of all, they are telling us that where is acceptance defined. Acceptance is defined under section 2B. और क्या कहता है section 2B? When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto. क्या कहना चाह रहे हैं कि जब भी एक पर्सन को कोई प्रपोजल दिया जाता है, सपोजली x एंड y, x ने y को प्रपोजल दिया, तो प्रपोजल किसको मिला? y को. तो जब y made signifies his assent thereto, that is जब वो अपनी assent दे देता है, यानी कि the offer is said to be accepted, यानी कि वो उस ऑफर को अपनी एक yes दे देता है या अपनी एक affirmation दे देता है, then it is said that that offer has been accepted. Thus the proposal when accepted becomes a promise. और जब ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया जाता है, यानी कि जब ये एसेंट मिल जाती है प्रोमिसर को प्रोमिसी की तरफ से, तो वो ऑफर एक प्रॉमिस बन जाता है. An offer can be revoked before it is accepted. इस ऑफर को कब तक वापस लिया जा सकता है, यानी कि X इस ऑफर को कब तक वापस ले सकता है? सपोजिटली अगर X ने ऑफर दिया था 10th जुलाई को और Y उसको एक्सेप्ट करने वाला है 15th जुलाई को, तो रिवोकेशन कब तक हो सकती है? रिवोकेशन से मतलब है कि X अपना ये ऑफर वापस कब तक ले सकता है? On or before 15th of July. That means वो 14th जुलाई 11:59 PM तक अपना ऑफर वापस ले सकता है. Under the Indian Contract Act, acceptance can be by following 2 ways. वो क्या कह रहे हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक्सेप्टेंस 2 तरह की होती है. फर्स्ट इज द इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस. इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस में वो क्या बता रहे हैं? दे आर टेलिंग यू 2 ways of the acceptance. Implied acceptance में they are saying the acceptance which is not explicitly made by the means of speech or writing. वो क्या कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी एक्सेप्टेंस जो explicitly बोलकर और लिखकर नहीं बताई जा रही है, that acceptance is called implied acceptance. But
by the conduct of the person to whom an offer is made. क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको सामने वाले के कंडक्ट से, उसके जेस्चर से आपको ये समझ आ रहा है कि उसने वो ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अब आप पूछोगे मैम हम क्या समझे सामने वाले के जेस्चर्स, कंडक्ट, कि उनका कंडक्ट से हमें कैसे समझ में आएगा कि ऑफर एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है? तो here the example is also mentioned, the striking of the hammer thrice by the auctioneer. आपको पता है एक ऑक्शन कैसे होता है, राइट? एक ऑक्शन होता है जब एक बिडर जिस भी चीज का ऑक्शन हो रहा है, सपोजिटली एक हाउस का ऑक्शन हो रहा है, जब एक बिडर उस हाउस की बोली लगाता है, सपोजिटली ₹10 lakhs की बोली लगाई एक बिडर ने, ठीक है? जस्ट अ सेकेंड। सपोजिटली बिडर ने बोली लगाई 10 लाख रुपीस की, राइट? तो बिडर ने जैसे ही 10 लाख की बोली लगाई और उससे ऊपर बिड लगाने वाला कोई नहीं है, तो जो ऑक्शनर है उसने अपने हैमर को थ्राइस बार टैप किया और उस कंडक्ट से हमें पता चल गया कि ऑक्शनर ने बिडर के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। ना उसने कुछ बोला, ना उसने कुछ रिटर्न में दिया। किसने? ऑक्शनर ने ना कुछ बोला, ना कुछ रिटर्न में दिया, सिर्फ अपना कंडक्ट यानी कि थ्राइस हैमर को स्टैम्प करके उसने ये बता दिया कि उसका जो ऑफर है यानी कि बिडर का जो ऑफर है 10 लाख रुपीस का, वो एक्सेप्ट हो गया है। एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। फर्दर इट सेज, ये हम एक रूल्स एंड प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं जो हमें पैसेज से पहले पढ़ना है, जिसके आगे हम फॉलो अप क्वेश्चंस करेंगे। द सेकंड वन इज एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस। Acceptance which is made by the means of words. This is totally opposite of implied acceptance. और इसमें क्या कह रहे हैं? Made by means of words, जो कहकर, बोलकर या लिखकर बताई जाए, वो acceptance is known as express acceptance. अगर मेरे को किसी ने ऑफर दिया कि can you buy my pen for 25 rupees, मैंने बोला हाँ आई विल बाय योर पेन फॉर 25 रुपीज। मैंने बोलकर उसको अपनी एक्सेप्टेंस दी, एंड दैट इज वेयर इट इज कॉल्ड एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस। फॉर एग्जांपल, ए ऑफर्स बी हिज वॉच फॉर सेल थ्रू मेल। ए ने बी को बोला मेल के थ्रू कि तुम मेरी वॉच खरीद लो, ठीक है? एंड बी ने उसको रिप्लाई किया yes I'm gonna buy your watch, ईमेल के थ्रू ही उसको रिप्लाई किया, ठीक है? तो ये क्या हो गई? ये हो गई एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस टू बी लीगली एनफोर्सेबल मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। वो क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी एक्सेप्टेंस होती है तो वो बिल्कुल एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, यानी कि जो ऑफर मिला था डिट्टो वही एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए। अगर मैंने बोला, अगर बरखा ने बोला सी को कि बाय माय पेन फॉर 25 रुपीज, लेकिन सी उसको बोलता है कि नहीं आई एम गोना बाय योर पेन फॉर 20 रुपीज, दैट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस, क्योंकि वो एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट नहीं है क्योंकि मैंने उसको 25 रुपीज का ऑफर दिया था, बट उसने मुझे एक्सेप्टेंस सिर्फ 20 रुपीज की दी है, इसीलिए वो एक एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस नहीं है। और अनक्वालिफाइड से क्या मतलब है? अनकंडीशनल होनी चाहिए, यानी कि अगर मैं अगर बरखा सी को एक ऑफर दे रही है 25 रुपीज का पेन, और सी बदले में बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारा पेन 25 रुपीज में तो खरीदूंगा, लेकिन यू हैव टू गिव इट विदिन 2 days। द पेन की डिलीवरी 2 दिन के अंदर अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पे उसने क्या किया? यहाँ पे उसने कंडीशन लगा दी, एंड इसीलिए ये एक्सेप्टेंस भी वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे उसने एक कंडीशन लगा दी अपनी एक्सेप्टेंस के ऊपर। सेक्शन 7 clause 1 of the Indian Contract Act provides that in order to turn an offer into an agreement, the acceptance to the offer must be absolute and
अनक्वालिफाइड। वो क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी भी एक्सेप्टेंस को ये करना है, वैलिड एक्सेप्टेंस में टर्न करना है, तो वो एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। और वो कौन सा सेक्शन हमें बता रहा है? वो सेक्शन हमें 7(1) ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बता रहा है, राइट? नाउ वी कम टू द पार्शियल एक्सेप्टेंस। There is no such thing what is called as partial acceptance। वो आपको इसी से समझ आ गया होगा कि एक्सेप्टेंस जो होनी चाहिए वो बिल्कुल एब्सोल्यूट होनी चाहिए और बिल्कुल अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। तो पार्शियल एक्सेप्टेंस का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, राइट? फिर भी पढ़ते हैं इसको। इट इज अ सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट द ऑफर व्हिच इज पुट before the offeree should be accepted by him in entirety, and he cannot accept the offer partially by agreeing only to the terms of the contract which are favorable to him। जैसे वही एग्जांपल लेते हैं, A ने B को बोला कि 25 रुपीज में मेरा पेन ले लो, लेकिन B उसको बोल रहा है कि मैं तो सिर्फ 20 रुपीज दे सकता हूँ उस पेन के लिए। तो ये वाली एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगी, क्योंकि B यहाँ पे अपने फेवर में एक्ट करवाने की सोच रहा है और बी के टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से एक्सेप्टेंस डजंट वर्क, पार्शियल एक्सेप्टेंस डजंट वर्क, एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। While rejecting the rest of the conditions under the offer as an incomplete acceptance of the offer would result into counter proposal, and therefore it will not bind the offerer as there is no binding contract between him। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे ही कोई एक नई कंडीशन आती है, जैसे ही ए ने बी को बोला कि मैं 25 रुपीज का पेन दे सकता हूँ, लेकिन बी ने बदले में बोला कि मैं सिर्फ 20 रुपीज का पेन ले सकता हूँ, तो ये क्या हो गया? बी की तरफ से एक काउंटर ऑफर कि बी उसको बोल रहा है कि तू मुझे 25 रुपीज की बजाय 20 रुपीज में अपना पेन दे दे। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज काउंटर प्रपोजल, कि उस एक्सेप्टेंस को उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे ना एक्सेप्ट करके एक नया ऑफर दे देना कि 25 की बजाय 20 में दे दो, एंड दैट इज कॉल्ड एज काउंटर प्रपोजल। इसीलिए ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, क्योंकि यहां से भी एक ऑफर गया है और यहां से भी एक ऑफर गया है, और प्रपोजल और एक्सेप्टेंस मिलकर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी एक्सेप्टेंस है ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक दोनों तरफ से पार्टीज दोनों तरफ से सिर्फ ऑफर आ रहा है। इसीलिए there is not a valid contract here because there is no acceptance from either of the parties। A counter offer is a response given to an initial offer। counter offer एक response होता है initial offer का, जो initially A ने क्या offer दिया था? 25 रुपीज का। काउंटर ऑफर उसका जवाब है कि नहीं, 20 रुपए का पेन खरीदना चाहते हैं, ठीक है? A counter offer means the original offer was rejected and replaced with another one। वो क्या बोल रहे हैं कि काउंटर ऑफर का मतलब होता है कि आपने पहले वाला ऑफर तो रिजेक्ट कर दिया और अपनी तरफ से एक नया प्रपोजल दे दिया। That is what is called as counter proposal। So this were the rules and principles जो हमने इस passage में पढ़े, and now we have to see the questions for the follower कि इसके आगे इनके रिगार्डिंग इन्होंने क्या क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, and we are gonna solve it। This is the first question। A sends a letter to B stating if you are interested in buying 1 quintal of chestnut, send over the truck along with 2 others। क्या कहना चाह रहे हैं? A ने B को लेटर भेजा कि 1 क्विंटल चेस्टनट, 1 क्विंटल काजू खरीद लो मुझसे अगर तुम इंटरेस्टेड हो, और अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो उसको ट्रक से भेजना और 2 लोगों के साथ भेजना, ठीक है? B sent the truck and the 2 others। B ने ट्रक में काजू भेजे और 2 लोगों को उसके साथ भेजा। B denied
selling the chestnut. Sorry, it should be A है. A ने काजू बेचने से मना कर दिया कि I don't want to sell the chestnuts. ठीक है? B filed a case for the breach of contract. B ने बोला कि तुम तो कॉन्ट्रैक्ट को लीगली बाइंड ही नहीं कर रहे हो, तो नाउ वी हैव टू डिसाइड कि किसके फेवर में क्या डिसीजन आएगा, एंड दीज आर द ऑप्शंस. देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट एज देयर वाज नो एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस फ्रॉम ए. वो ये कह रहे हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था क्योंकि कोई एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस नहीं थी. बी, देयर वाज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज सेंडिंग द ट्रक अलोंग विद द टू अदर्स meant the acceptance was implied. कि ये कह रहे हैं सेकंड ऑप्शन में कि ये प्रॉपर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था क्योंकि बी ने ट्रक भी भेज दिया था और बी ने दो लोगों को भी भेज दिया था, इसीलिए एक्सेप्टेंस जो थी वो implied हो गई थी. थर्ड ऑप्शन, there was no contract as the contract should be in written form and unambiguous. ऐसा तो है नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा रिटन फॉर्म में होना चाहिए, तो ये हमारा ऑप्शन ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया. There was a valid offer, but the acceptance was not absolute and unqualified. कह रहे हैं कि ऑफर तो वैलिड था, बट एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट नहीं थी और अनक्वालिफाइड नहीं थी. हमने यहाँ देखा कि कोई कंडीशन और कुछ तो लगा ही नहीं है. जिस तरीके का प्रपोजल दिया था वैसे ही उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया. तो नाउ यू जस्ट हैव 10 सेकेंड्स, अपने दिमाग में इसका आंसर सोचो एंड सी व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर. And in the next slide, we have the right answer. And the right answer is B. I think you all must have guessed it right. This is a case of implied acceptance. Following the requirement would lead to acceptance, which in case was sending truck and two men. वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब B ने ऑटोमेटिकली उस एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया, उस ऑफर को, ट्रक भी भेज दिया और उसके साथ साथ दो लोग भी भेज दिए. जो ऑफर इनिशियल ऑफर था उसकी कंडीशंस भी तो यही थी ना कि अगर तुम एक्सेप्ट करना चाहते हो तो ट्रक भेजो और दो लोगों को भेजो, और वही सेम एग्जैक्ट एक्सेप्टेंस हुई है. इसीलिए ये एक हो गया इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस का केस, क्योंकि जैसा ही ऑफर मिला था जिन कंडीशंस के साथ, वैसे की वैसे कंडीशंस को फुलफिल करके वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया गया. एंड दिस इज अ केस ऑफ इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, हेंस बी इज द करेक्ट ऑप्शन. अंडरस्टूड? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. Z sent a letter to Y stating, I would like to sell my bike to you. Z ने लेटर भेजा Y को कि मैं तुम्हें अपनी बाइक बेचना चाहता हूँ. प्राइस 25 to 30,000. उसने बोला कितने में? 25 to 30K में मैं अपनी बाइक तुम्हें बेचना चाहता हूँ. प्लीज रिवर्ट इफ यू आर इंटरेस्टेड. मुझे रिप्लाई करना अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो. Y replied to the letter saying interested in your bike, price 20,000. Y ने ऑफर को तो एक्सेप्ट किया, बट ये बोला कि I am accepting your offer at ₹20,000. मतलब मैं तुम्हारी बाइक लेने में तो इंटरेस्टेड हूँ, but I can give 20,000 for your bike. Is there a valid acceptance? क्या ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस है? Looking at the options, first option, there is a valid acceptance as Y has relayed the information of his interest in the proposal. ये कह रहे हैं कि ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस है क्योंकि Y ने अपनी इंफॉर्मेशन सारी ऑफर में बता दी थी. Second option, there is a valid acceptance as Y has adhered to the required mean of acceptance, that is through letter. वो ये कहना चाह रहे हैं कि वैलिड एक्सेप्टेंस है क्योंकि Y ने भी जो अपना रिप्लाई दिया है वो लेटर के थ्रू ही दिया है. Eliminated, doesn't make sense only. This also eliminated because this option doesn't suit only. ठीक है? Third, there is no valid acceptance as Y has made a counter offer to that of Z. ये बोल रहे हैं कि वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है बिकॉज Y ने काउंटर ऑफर दे दिया Z को
और फोर्थ ऑप्शन है देयर इज नो वैलिड एक्सेप्टेंस एज वाई शुड हैव मेंशन्ड अ प्राइस बिटवीन 25,000 टू 30,000। वो कह रहे हैं कि कोई वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है क्योंकि वाई को जो अपना अमाउंट बताना चाहिए था वो 25 से 30 के बीच में ही बताना चाहिए था। अब ये देखो, दिस इज द ट्रिक टू सॉल्व योर लीगल पैसेजेस बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से। कैसे? दो ऑप्शंस तो हमारे पिछले क्वेश्चन में भी एलिमिनेट हो गए थे, दो ऑप्शंस हमारे यहाँ भी एलिमिनेट हो गए। हमारे पास हमेशा सिर्फ दो ऑप्शंस बचते हैं जिसमें हमें हमेशा कंफ्यूजन होती है एंड उसमें हमें चूज करना होता है कि विच वन इज द बेस्ट ऑप्शन। तो नाउ यू हैव अगेन 10 सेकेंड्स, इन दोनों में से डिसाइड करो कि विच विल बी योर आंसर। The answer is C. क्यों B क्यों नहीं? देखो B भी इसका आंसर हो जाता, लेकिन B में बोला है कि प्रपोजल सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हुआ क्योंकि 25 से 30K के बीच में उसको अपना प्राइस मेंशन करना चाहिए था। बट इज दैट द केस? प्रपोजल तो इसलिए रिजेक्ट हुआ क्योंकि Y ने एक काउंटर ऑफर दे दिया X को कि मैं भाई 25,000 की बजाय सिर्फ 20,000 में खरीदूंगा। तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेटर बैठता है? काउंटर ऑफर वाला, क्योंकि हमारा जो पैसेज था उसमें काउंटर ऑफर की बात की गई है। अगर उसमें काउंटर ऑफर की बात नहीं की होती तो शायद B would have been your option, बट हमारे पैसेज में एक्सप्लिसिटली काउंटर ऑफर की बात की गई थी एंड दैट इज व्हाई आंसर C becomes your right answer, that an acceptance is valid only when it is absolute and unqualified। और जब कोई वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होती और कोई नई कंडीशन लग जाती है तो वो एक काउंटर ऑफर बन जाता है, इसीलिए C is the right answer। Understood? Moving to the third question, A requested B, an engineer, to oversee the construction of his house। A ने B को बोला कि मेरे हाउस की कंस्ट्रक्शन देख लो, ठीक है? B is an engineer। B accepted the offer and stated that he would look after the construction of the first floor। There is a catch here। B ने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारे घर की कंस्ट्रक्शन तो देख लूंगा, लेकिन I would see the construction of the first floor तुम्हारे घर का, ठीक है? Is there a valid acceptance? Now you have to look up the options। There is a valid acceptance as B has shown his willingness to enter into the contract। वो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ valid acceptance है क्योंकि B ने अपनी willingness दे दी। Second option, there is no valid acceptance as B has made a counter offer। ये कह रहे हैं कि कोई valid acceptance नहीं है क्योंकि B ने कोई counter offer दिया है। क्या B ने कोई counter offer दिया है? नहीं दिया ना, तो this option eliminated। There is no acceptance as B did not accept the offer of A। कह रहे हैं कि कोई acceptance नहीं है क्योंकि B ने accept नहीं किया A के offer को, लेकिन B ने तो accept कर लिया A के offer को, तो this also got eliminated। Fourth option, there is no valid acceptance as B made a partial acceptance of the offer। वो क्या कह रहे हैं कि valid acceptance इसलिए नहीं है क्योंकि B ने पार्शियल एक्सेप्टेंस दी है A के ऑफर को। इज दैट द केस? देखो, या तो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती या वैलिड एक्सेप्टेंस हो सकती है। अब तुम इस डिलेमा में हो कि A और D में से कौन सा आंसर सही होगा। तो नाउ यू हैव अनदर 10 सेकेंड्स कि तुम लोग डिसाइड करो कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर। प्रीटी इजी, राइट? एंड आंसर D is the correct one। I think तुम लोगों ने ये सोचा होगा just because partial acceptance दी है। A ने बोला था कि मेरे पूरे घर के कंस्ट्रक्शन को देखो, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ये जितने भी फ्लोर होते उसके घर में, उसने बोला था मेरे पूरे घर के कंस्ट्रक्शन को तुम्हें देखना है। लेकिन B ने क्या बोला कि मैं सिर्फ फर्स्ट फ्लोर के कंस्ट्रक्शन को देखूंगा।
तो क्या हो गया, उसने पार्शियली एक्सेप्ट किया है, बी ने पार्शियली एक्सेप्ट किया है ए के ऑफर को, और हमने पैसेज में पढ़ा था कि पार्शियल एक्सेप्टेंस जैसी कोई चीज नहीं होती। And that is why D becomes the right answer. There is no valid acceptance as B made a partial acceptance of the offer. इसीलिए D would be the right answer. Understood? Question number 4. We have to decide according to the theme of the passage that which one is the following valid acceptance. A offered B to sell his pen for 30 rupees. B accepted the offer stating he will pay 25 rupees. Again or wrong because क्या हो गया, काउंटर ऑफर हो गया, तो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी। हम इसका साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं आंसर। Z टेलीग्राम B offering to sell his house to B. Z ने B को बोला कि मेरा घर खरीद लो, टेलीग्राम किया। He stated that the house will be sold only at the personal presence of B. Z sent his lawyer to purchase the house. ठीक है, उसने बोला कि जब तुम प्रेजेंट होगे तभी घर को मैं बेचूंगा, और Z ने अपने लॉयर को भेज दिया हाउस करने के लिए, परचेज करने के लिए। ठीक है, ये भी हो गई क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लग गई, और एक्सेप्टेंस हमेशा क्या होनी चाहिए, एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। A offered to sell his car to B provided he will rely on his acceptance within 15 days from the date of proposal. B relayed the message on the 14th day. इसको साइड में रखते हैं। And next, let's come to the fourth option. A offered to sell his gold chain for 1 lakh to H. H replied he was willing to pay 1.5 lakh as it was made up of rare gems. ये भी गलत हो गया because 1 लाख की बोला था, वो कितने देने के लिए तैयार है, वो 1.5 लाख देने के लिए तैयार है। अगेन अ केस ऑफ काउंटर ऑफर। तो ये भी हमारा, तो हमारा ऑप्शन क्या बचा, सी इज ऑटोमेटिकली द करेक्ट आंसर। और सी क्यों है सही आंसर, क्योंकि उसने पहले ही बोला था कि अगर तुम मेरी कार खरीदना चाहते हो तो 15 डेज के अंदर अंदर खरीद लेना। बी ने 14th डे पे रिप्लाई कर दिया, 15 डेज का टाइम था, 14th डे पे एक्सेप्टेंस हो गई, एंड दैट इज हाउ इट constitutes a valid acceptance and therefore constituting a valid contract between A and B. Answer is C. Got it? Moving to the last question of this passage, what happens when the acceptance is not absolute and qualified? क्या होता है जब एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट और क्वालिफाइड नहीं होती? ये तो हमें पैसेज में से ही मिल जाएगा। इट लीड्स टू एम्बिग्विटी बट अ कॉन्ट्रैक्ट विल हैपन। नहीं, जब एक्सेप्टेंस ही नहीं होती एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड, तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट तो बनता ही नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन एलिमिनेटेड। इट लीड्स टू अ काउंटर ऑफर, हाँ इसको रख सकते हैं साइड में। इट लीड्स टू जनरल ऑफर्स, जनरल ऑफर की कोई बात नहीं हुई हमारे पैसेज में, तो दिस ऑप्शन आल्सो एलिमिनेटेड। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस विल मेक द एक्सेप्टर मोर पावरफुल देन द प्रपोजल। ऐसी भी हमारी कोई बात नहीं हुई पैसेज में कि क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस से एक्सेप्टर को है वो ज्यादा पावरफुल हो जाता है प्रपोजर का, ऐसी हमारी कोई बात नहीं हुई, एंड दैट इज व्हाई दिस बिकम्स द राइट आंसर, एंड द करेक्ट आंसर इज बी। राइट, तो आपको इस पैसेज से समझ आया होगा। मेरा ये पैसेज चूज करने का अल्टीरियर मोटिव ये था कि मैं आपको ये बता सकूं कि आप कैसे एक एलिमिनेशन मेथड को यूज करके अपना मोस्ट ऑफ द टाइम सेव कर सकते हो। जब आपको 4 ऑप्शंस में से ऑलरेडी 2 ऑप्शंस अनक्वालिफाइड दिख जाए कि ये 2 ऑप्शंस तो लगे नहीं रहे, then it becomes very easy for you to choose between the rest of the 2 options, and that is how you can save your time. Here I'm signing off, and I'll be back with such legal passages, and we are gonna continue this if you make us reach 3K subscribers on the YouTube, and you can enroll with us if you wish to for your CLAT preparation from our website www.iconta.in, and we'll be back with such informational passages very soon. Thank you.